दोस्तों कुछ लोगों ने जब सुना कि हम अंडमान जा रहे हैं तो उन्होंने हमसे ऐसा कहा, तो हमने सोचा क्यों ही ना बढ़िया सनसेट्स के साथ स्कूबा भी एंजॉय कर लिया जाए। बहुत बेहतरीन बीचेस तो दुनिया में बहुत जगह पे ही देखने को मिलता है, बट इतना बढ़िया स्कूबा डाइविंग जैसा हैवलॉक में होता है बहुत लोगों ने ही कहा वैसा बहुत जगह नहीं होता। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स टेक द रिस्क, भले ही थोड़ा डर लगे बट एक्सपीरियंस तो करना है। सो सुबह सुबह उठ के थोड़ा होशियारी दिखा के हम निकल गए अपने स्कूबा सेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, आप जब स्कूबा डाइविंग के लिए पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ेगा, जहां पे आप सेल्फ डिक्लेयर करेंगे कि आपका कोई हार्ट कंडीशन, ब्लड प्रेशर कंडीशन या फिर आपको ऐसा कोई डिजीज़ या एलिमेंट नहीं है जिसके लिए यू माइट बी अंडर एनी काइंड ऑफ हेल्थ रिस्क व्हेन यू आर अंडर वाटर. Once you are done signing this declaration form, and I highly advise you to go through this form quite nicely, read it quite well, that's when they will send you for getting dressed and take you for a quick training session of the best practices and to-dos when you are underwater. तो हम दोनों अभी we are both dressed up. So we are both dressed up, so we are just going to go in. तो यहाँ पे कुछ सामान रखना है and then we'll be headed. Once you are dressed up, you will first be taken for a training session. Now, the training session will depend upon the kind of scuba diving that you are going to go for. There are two kind of options that you have. एक जहाँ पे आप शोर से वॉक करते करते towards the ocean जाओगे. That was costing us around 3,000 back in 2022 December. The second one is आपको middle of the ocean में लेके ले जाएंगे in a vessel, and then they will throw you kind of in the ocean. That costed us around 4,500 back in December of 2022. So we went for that second one, and as you can see second one में आपको पूरा ocean के नीचे लेके लिया जाएगा, and there would be a trainer who would be guiding you with the entire experience. The entire experience lasts for around 15 minutes to 20 minutes, but that depends कि how well you can adjust yourself to the environment under the ocean. If you are panicking quite a lot, they will show you some hand gesture and hand signs. उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो अपने ट्रेनर को कि मुझे ऊपर जाना है या फिर you are fine going further down. So that's how the entire experience lasts. Along with this 4.5 or 3,000, it's inclusive, or at least back then it was inclusive of the videos and the photos that they're going to take. There is going to be an individual जो जिसका काम यही होगा जो आपके लिए फोटो एंड वीडियो लेगा, and afterwards they will be giving it to you. So it's a very good experience. If you are physically fit enough, you should definitely consider going for a scuba dive. Make sure that it's already budgeted आपके पूरा ट्रिप बजट में, and it's definitely something that we will highly recommend. तो अभी हम लोग स्कूबा करके लौट रहे हैं होटल में, और हमारा यहाँ का नील वाला फेरी ऑलमोस्ट निकलने वाला है, तो हम एकदम भाग दौड़ के किसी तरह से होटल घुसते हैं, कपड़ा लेके फेरी के लिए निकलते हैं, एंड बाद में मैं पूरा चीज़ कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा गया, सी लिंक जहाँ से हमने किया उनका इस तरह हमारा क्या रिव्यू है, विल ऐड ऑल दैट, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट फॉर नाउ आई नीड टू रियली रश एंड गेट टू द फेरी. तो हम लोग निकल रहे हैं हैवलॉक से अभी. We are going to board the ferry and go to Deal. We really regret not planning it in the proper way. हमको और एक दिन हैवलॉक में ज़रूर रुकना चाहिए था. So टूर ऑपरेटर के साथ हम आए थे और उन्होंने जो प्लान दिया मैं देखा ही नहीं, and we just went ahead with it. So obviously आप अगर हैवलॉक आ रहे हैं 2 दिन तो मिनिमम है. If you are entering on day 1, day 2 is for sure. Best would be if you are leaving on day 3. So this is something you should be cognizant of. But we are leaving currently. We will just go to the jetty, get the ferry for Neil and move on to Neil. But for anyone else who is making the plans for Havelock, आपको बिल्कुल 2 से 3 दिन तो रुकना चाहिए ही चाहिए. So this is goodbye from Havelock. तो हम Havelock से भी निकल रहे हैं for Neil. तो हमारा जो फेरी था वो तो कैंसिल हो गया, सो हम दूसरे किसी फेरी में उन लोगों ने खुद ही इंटरनली हमको एलोकेट कर दिया. सो दैट्स फाइन, नॉट एन इशू. द वेदर इज़ ब्रिलियंट हियर, एज यू कैन सी. वेदर बहुत अच्छा है, भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है. तो ये आपका अगर गवर्नमेंट फेरी से आप जा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट वाला फेरी है. तो हमारा तो था जिससे हम पहले आए थे IIT मैजेस्टिक, बट वो कैंसिल हो गया. तो वो कैंसिल होकर हमको ये नया वाला अलॉट हुआ है, उन्होंने खुद ही इंटरनली कर दिया. गो न्यूटनिक्स बोल के कोई ऑपरेटर है जो फेरी चलाते हैं, तो उनके से ये है सी लिंक. सो
इंटरनली हो गया, सो हमारा कोई हेडेक रहा नहीं. सो दैट्स अ फाइन प्रोपोजिशन फ्रॉम आवर एंड. सो बेसिकली अब अगर आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आ रहे हैं या फिर नहीं कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस. One is a government one and another is a private one. So depending upon the kind of budget that you have, you can take either one of them. And once we boarded the ferry, experience काफ़ी similar था to the experience that we had when we were coming from Port Blair to Havelock. Rather इसका आपका travel and journey duration थोड़ा कम है. That is Havelock to Neil का overall ferry time duration थोड़ा कम रहता है. But nonetheless you will be enjoying the journey as much as you enjoyed the first journey. And once we landed at Neil, हमको feel हुआ the water is even more clean and पानी और blue है. फॉर सम रीज़न नील में कंपेरेटिवली कम नंबर ऑफ होटल्स है, शायद क्राउड कम रहती है, इसलिए शायद पानी और क्लियर रहता है. बट द वाटर इज़ रियली क्रिस्टल क्लियर. तो वी फॉलो द सेम SOP. हम फेरी से उतरे, हमने अपना लगेज ग्रैब किया, वी बोर्डेड द कैब दैट वाज वेटिंग फॉर अस एंड हम निकल गए फॉर आवर होटल एट नील. Once we reached our hotel, we freshened up, and after freshening up, we went and started for our first spot of the day, which was a natural bridge. तो नील आइलैंड में हम लंच करके अभी निकले हैं टू गो टू द नेचुरल ब्रीच. और अंडमान में अगर आप किसी टूर ऑपरेटर के साथ आते हैं तो शायद आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना रहे, क्योंकि यहाँ पे अजीब ही टाइप का सिचुएशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टूर ऑपरेटर्स एंड द होटल्स एंड द कैब्स वो ड्राइविंग हियर. यहाँ पे आपको सब शेयर्ड कैब्स ही मिलेंगे, मतलब कैब वाला आके आपको उतार के फिर जाके और किसी को उठाएगा. होटल्स में पैकेज में इट्स नॉट अ गुड, ओवरऑल नॉट अ गुड एक्सपीरियंस. जैसे यहाँ पे नेचुरल ब्रिज बोल के एक स्पॉट है, वहाँ जाने के लिए आपको वो लोग बोल रहे हैं कि चल के ही आना है या फिर टेक अ ऑटो आउटसाइड द पैकेज. सो अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन, अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज बीइंग स्प्रेड. तो प्रोबेबली अगर आप खुद से प्लान करके अच्छे से आते हैं, दैट विल गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस ओवरऑल. सो अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जैसे हम जब आज सुबह को स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, करते टाइम हमको जो लिविंग कोरल्स दिख रहा था, तो ये भी कभी कोरल्स था लिविंग, बट दे आर डेड नाउ बिकॉज द वाटर हैज़ रिसाइडेड, सो दे आर नॉट लिविंग एनी मोर. तो मे बी आज से 500 years बैक दे यूज्ड टू बी लिविंग व्हेन द वाटर यूज्ड टू गो ऑल द वे बैक देयर. बट अभी वाटर काफ़ी रिसाइड कर गया है, सो वॉट एवर नेचुरल इकोलॉजिकल रीजन्स. So these are not living corals anymore. एंड नेचुरल ब्रिज से निकल के हम आ गए लक्ष्मणपुर बीच. लक्ष्मणपुर बीच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन नील आइलैंड टू एक्सपीरियंस एंड विटनेस सनसेट. आपको जो सनसेट देखने को मिलेगा, इट्स गोइंग टू बी रियली सनरियल. बहुत ही सुंदर सनसेट रहता है एंड क्राउड भी बहुत रहता है, जस्ट बिकॉज यू कैन एक्सपीरियंस अ ग्रेट सनसेट. द वॉक इज़ क्वाइट अ लॉट. जहाँ पे आप गाड़ी से उतरोगे वहाँ से सनसेट पॉइंट तक का वॉक काफ़ी लंबा रहता है. बट आई कैन अश्योर यू, एज यू कैन सी इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट इज़. तो ये तो मस्ट विजिट है ड्यूरिंग योर टाइम एट नील. आपको लक्ष्मणपुर आना ही है टू एक्सपीरियंस दिस सनरियल सनसेट.
एंड वंस द सनसेट वॉज डन हम वॉक करके अपने गाड़ी तक लौट गए एंड देन वेंट बैक टू आवर होटल. So that was how we ended and spent the one day that we had at Neil. You can definitely spend one more day just relaxing on a beach और बिना कुछ किए you can have a relaxing session at Neil, that's for sure. But हमारा एक ही दिन का itinerary में था, so we spent that one day. After spending that day and spending the night, next दिन सुबह को हम उठे, we went to a close by beach and as you can see the water was really clean. तो हमने कुछ टाइम बीच में स्पेंड किया बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स पोर्ट ब्लेयर. सो आज हमारा 5th डे है और आज हम निकल रहे हैं फ्रॉम नील एंड विल बी गोइंग बैक टू पोर्ट ब्लेयर एंड कल हम पोर्ट ब्लेयर से निकलेंगे फॉर डिग्लीपुर. सो जो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे फेरीज़ का टाइम बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है. हमारा 11:45 का फेरी था जो अभी चेंज होकर हो गया है 9:30. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. सो प्लानिंग योर ट्रिप अकॉर्डिंगली विल बी अ बिग चैलेंज फॉर एनीवन. तो आज हमारा पोर्ट ब्लेयर में जाकर ऐसा कोई प्लान है ही नहीं. सो आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू. So again, I'm not very happy with this entire tour operator thing, whatever we did this time. Not be doing it again probably in future. But अगर आप आते हैं आपको genuinely इसको लेके सोचना चाहिए. You need to be very cognizant about this fact, how you can do the planning. So this is a huge challenge. So ये जो walk है नील आइलैंड में from the gate to the ferry, that's quite a long walk. So there is an option for you टू टेक अ वैन. कुछ 1-2 वैन वाले हैं जो उस रूट से आपके वैन को ले जाके लगेज को पहुंचा देंगे फेरी को वहाँ. सो दैट समथिंग यू कैन अवेल इफ़ यू वांट टू. ऑब्वियसली दैट कम्स विद एन एक्स्ट्रा चार्ज जस्ट लाइक दैट. जैसे आपको दिख रहा है कोई वैन वाला है वैसे आपको पहुँचा सकता है, बट ऑब्वियसली दैट कम्स विद एन एक्स्ट्रा चार्ज. सो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे हमारे लिए और कुछ नहीं था आइटनरी में, तो हमने पोर्ट ब्लेयर में अपना रेस्ट ऑफ द इवनिंग स्पेंड किया. वहाँ पे एक चाय सुट्टा बार है तो हम उस चाय सुट्टा बार में गए, हैड सम पिज़्ज़ा एंड सम टी एंड दैट्स हाउ वी एंडेड द इवनिंग. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर अस बिकॉज वी हैड टू स्टार्ट फॉर डिग्लीपुर. उसके लिए एक बड़ा क्यू लगता है बिकॉज आप प्रोहिबिटेड एरिया से जाते हो जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं. तो अभी बज रहे सुबह के 4:45 और हम होटल से निकले थे 2:45 को. तो डिग्लीपुर जाने के लिए आपको काफ़ी सुबह को निकलना पड़ता है बिकॉज यहाँ से 2 कन्वेज आती है, उसके लिए बहुत लंबा लाइन पड़ता है. जैसे अभी 4:45 बजे ही ऑलमोस्ट 10-12 गाड़ी का शायद लाइन पड़ चुका है. तो हमारा गाड़ी शायद मुझे लाइन दिख रहा है, हाँ काफ़ी लंबा लाइन है. तो हम उस लाइन में ये भी खड़े हैं. तो ऐसे ही डिग्लीपुर का चीज़ चलता है. तो जैसे जैसे होता जाएगा मैं एंड में पूरा चीज़ बता दूंगा क्या आपको करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा. बट काफ़ी टाइम के पहले आपको निकलना पड़ता है एंड आपको पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. तो हम अभी निकल के शायद डिग्लीपुर पहुंचेंगे रात शाम तक, शाम तो हो ही जाएगा. तो देखते हैं चीज़ें कैसे कैसे चलती है, मैं बता जाऊंगा. पर अभी बज रहे हैं 4:45 और हम ऑलरेडी लाइन पे खड़े हैं. तो पता नहीं कितना क्लियरली चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि अंधेरा काफ़ी है. अभी बज रहे 4:45, तो 1 घंटा हमने बिता दिया वेट करते करते. तो ये जो दुकान है अभी हम यहीं पर खाने वाले हैं. ब्रेकफास्ट, चाय वाय, नाश्ता जो भी करना है कर लेंगे और उसके बाद अभी और 1 घंटा वेट करना है. 6 बजे जो पहला कॉन्वॉय है वो खुलता है. तो सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ से 4 कॉन्वॉय खुलती हैं, एक 6, एक 9, फिर एक 12 और एक 2:30 बजे. ऐसे 4 कॉन्वॉयज निकलेंगी यहाँ से.
सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम दिखाने वाले हैं हमारा जर्नी टू बाराटांग एंड वहाँ से हम कैसे जाते हैं डिगलीपुर के लिए, हाउ बैड द रोड कंडीशंस वेर, व्हाई वी हैड टू स्टार्ट सो अर्ली, एंड हम बाराटांग में एक मैनग्रोव के बीच में क्या क्या देखते हैं, एंड हाउ वी फाइनली मेक इट टू द रॉस एंड स्मिथ आइलैंड, जिसके लिए इतना एफर्ट हम डाल रहे हैं. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल.